गुजरात के वडोदरा शहर के प्रसिद्ध बिल्डर समीर शाह का दुखद निधन हो गया है। आज उनके निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। वडोदरा के जाने माने बिल्डर समीर शाह का निधन ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान हुआ। गंगा नदी में स्नान करते वक्त उनका पैर फिसल गया, जिसके कारण वे गहरे पानी में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान वासना से शुरू हुई, जिसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और बिल्डर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समीर शाह के अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को वड़ी स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात की सूरत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गुजरात के सूरत के मांगरोल के वांकल बोरिया मार्ग पर आज एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना घटी, जहां एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर उसका गला काट दिया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाली थी और घटना स्थल पर भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती की हत्या के बाद युवक ने भी अपना गला काट लिया। अमने हजू कई घटना कई खबर नहीं, कई जान ज नहीं। खाली आ छोकरा भाई फोन आयो કે ભાઈ ભાઈનું આવું થયેલું છે, સુરત લઈ ગયા છે, એટલે અમે અહીંયા ઓલપા રહેવા વાળા, એટલે અમે તો ત્યાંથી ઓલપાથી અહીંયા આવ્યા છે। જો અમે જસ્ટ જો આવીને ઉભા રહ્યા છે, હજુ પૂરી ઘટના અમને બી નથી ખબર કે આમાં શું છે શું નથી। હવે એમના મા બાપ આવે પછી ખબર પડે, એ લોકો બી અમને કહેશે તો અમને ખબર પડશે, બાકી અમને બી હજુ કઈ ખબર નહીં પડે। ડોક્ટર કોઈ વાત નહીં થઈ કે કોઈ આ અમારી વાત નહીં થઈ, અમને કોઈ ખ્યાલ જ નથી। આ તો ખાલી આવ્યા સંબંધી તરીકે અમે અહીંયા આવ્યા છે। હું ડોક્ટર આરતી, નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત। આજે સવારે 10:30 વાગે માંગરોળ CHC પરથી એક પેશન્ટ રિફર કરવામાં આવેલ હતું અને જેમના ઇન્જરીને તો જાણ નથી, પણ પેશન્ટના ગળાના ભાગે વાગેલાનું ઘા છે અને પેશન્ટને હાલ બોલી શકતો નથી, માટે પેશન્ટને પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ આપી અને ENT વિભાગમાં રિફર કરવામાં આવે છે। આજ રોજ સવારના 9 વાગ્યાના અરસામાં માંગરોળ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે વાંકલ ગામથી 500 મીટર દૂર ના રસ્તા ઉપર એક યુવક અને યુવતી બંને 20 થી 25 વર્ષની ઉંમર છે અને એ બંનેને ગળાને ભાગે ઈજા થયાની પોલીસને જાણ કરતા તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર પોલીસે પહોંચેલ છે અને છોકરીનું અત્યારે મરણ ગયેલ છે, તો એના માટે ઇન્ક્વેસ્ટ ભરી અને ફોરેન્સિકથી PM કરાવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને જે છોકરાને ઈજા થયેલ છે એ છોકરો અહીં અત્યારે સિવિલમાં એડમિટ છે અને એની અત્યારે સારવાર ચાલી રહી છે। આ બંને વચ્ચે ભણતા સાથે હતા એવી હકીકત જાણવા મળેલ છે અને બંને વચ્ચે મિત્રતાના સંબંધ હતા। આજ સવારે ઘટના બન્યાના થોડા સમય પહેલા ફોન પર પણ વાત થયેલી છે અને બંને એકબીજાને વાંકલમાં મળ્યા હતા અને એક્ટિવા પર બેસીને એ જગ્યાએ ગયેલ હતા। બંને વચ્ચે શું બનાવ બનેલ છે, શું અણબનાવ હતો, એની તમામ विगत पुलिस हाल लई रही है और आगळनी कार्यवाही पुलिस करी रही। गुजरात के वडोदरा की करजन नगर पालिका चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। करजन नगर पालिका में कुल 7 वार्ड की 28 सीटों के लिए 85 उम्मीदवार मैदान में थे। करजन नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटों पर जीत दर्ज की और नगर पालिका की सत्ता अपने नाम कर ली। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में हाल ही में हार का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह नतीजे राहत भरे साबित हुए। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kannan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kannanprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800 233 6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी हजारों भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। कला हमारे विचारों, अनुभवों और समाज को देखने के नजरिए का आईना होती है। और जब किसी कलाकार को अपनी कला के माध्यम से समाज में कुछ संदेश देना होता है तो वो सिर्फ चित्र नहीं बनाता है, बल्कि एक कहानी कहता है। और आज हम आपको VNN टीवी के माध्यम से एक ऐसी ही अनोखे कला से रूबरू करवाने जा रहे हैं। वडोदरा के MSU के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में अमिता गोस्वामी द्वारा पिन एंड पुल नामक एक सोलो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन में कलाकार ने लकड़ी के पिन और कुर्सी के माध्यम से नारी जीवन की गहराइयों को छूने की कोशिश की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन के कुछ खास नमूने। यहाँ मौजूद पेंटिंग्स में लकड़ी के पिन और कुर्सियों के जरिए ये दर्शाया गया है कि जैसे एक पिन में लगी स्प्रिंग दोनों सिरों को जोड़कर रखती है, वैसे ही एक स्त्री भी अपने जीवन में अलग अलग रिश्तों को बांध कर रखती है, कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी दोस्त बनकर। और इस एग्जीबिशन में 80 से ज़्यादा पेंटिंग्स है जो स्त्री के अस्तित्व और उसकी संघर्ष गाथा को बयां करती है। अब बात करते हैं इस एग्जीबिशन के एक और दिलचस्प पहलू की, कुर्सी।
जिसके माध्यम से दी गई इस कला की व्याख्या। यहाँ 3D पेंटिंग्स के ज़रिए कुर्सियों को अलग अलग भावनाओं का प्रतीक बनाया गया है। कुछ कुर्सियाँ आपको सहारा देती है तो कुछ आराम देती है, तो कुछ सिर्फ मौजूद होती है लेकिन कोई सहयोग नहीं करती। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जीवन में कुछ लोग हमारा संबल बनते हैं, कुछ हमें सहजता देते हैं और कुछ बस हमारे जीवन में होते हैं पर कोई खास भूमिका नहीं निभाते। तो ये पेंटिंग्स के ज़रिए भी अमिता जी ने जीवन की गहराइयों को दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें एक स्त्री सोसाइटी में इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली क्या क्या फेस करती है, क्या क्या सहन करती है, ये सारी चीज़ें इन पेंटिंग्स के ज़रिए दर्शाई गई है। चलिए अब हम अमिता गोस्वामी जी से बात करते हैं और जानते हैं इस अनोखी कला के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका VNM टीवी पे। तो हमें ये बताइए कि इस कला के बारे में आपको विचार कैसे आया कि ऐसे भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है? विचार तो देखिए हम लोगों को आते रहते हैं एज अ आर्टिस्ट। एक्चुअली हर एक कॉमन इंसान को कोई ना कोई विचार होता है जो क्रिएटिव हो सकता है, जो वो करते नहीं हैं। फ़र्क ये है आर्टिस्ट होने में और नॉर्मल रेगुलर इंसान होने में कि हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये क्लोथ पिन जो है मेरा टॉपिक आजकल, और दूसरा जो चेयर बना रही हूँ वो कोई नया नहीं है। सब लोग देखते हैं अपने लाइफ में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा कैरेक्टर अलग दिखता है जो मैं अपने आप के साथ में उसको सिमिलर समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक पिन मुझे दिखाती है शायद मैं वही हूँ, या तो मेरी लाइफ का बहुत सारा मीनिंग वही है। पिन के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि पिन के जो दो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको जोड़ने वाला है स्प्रिंग। वो स्प्रिंग है जो पिन का सोल है। अगर स्प्रिंग नहीं है तो पिन नहीं है। सो हमारे लिए ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ के कितने सारे एस्पेक्ट हैं जो हम लोग जोड़ के रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आई एम ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम एज अ मदर और एज अ वाइफ। वो दो अलग किरदार है लेकिन मैं उसको दोनों को जोड़ना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ भी है जो दो अलग चीज़ें हैं लेकिन उसको मैं जोड़ना चाहती हूँ। तो वो जोड़ने का काम करती हूँ मैं एज अ स्प्रिंग। तो वो एक विचार था, जब से मुझे पिन मिला है तब से मुझे ये विचार बहुत अपीलिंग लग रहा था, इसके लिए मैंने उसको यूज़ किया। एट द सेम टाइम चेयर, खाली चेयर, खास करके मेरी कोई भी चेयर में कोई बैठा हुआ नहीं है। खाली चेयर इसके लिए क्योंकि दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। चेयर में कौन बैठा था पहले या कौन बैठ के गया है, उसने क्या सोचा होगा, चेयर उसके बारे में क्या सोच रही होगी, या बाद में आके कौन बैठेगा वो क्या सोचेगा। ये सारे जब सवाल आते हैं दिमाग में तो उसको चित्रित करने की कोशिश करती हूँ। मेरा सारा काम, मैं लास्ट 18 साल से काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट। आई एम सेल्फ टॉट। मैंने फाइन आर्ट्स का ट्रेनिंग नहीं लिया है, लेकिन जो विचार है वही सारे मैं अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इस एग्जीबिशन के ज़रिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को संदेश तो मैं क्या ही दूंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं या जो हम लोगों ने चूज़ किया है उसको 100% देना चाहिए। पेन इज गिविंग इट्स 100% टू इट्स ड्यूटी। अगर वो ड्यूटी पे नहीं रहेगी तो कपड़े उड़ जाएंगे। सो इट इज़ दैट सिंपल। व्हेन यू हैव टेकन समथिंग एज योर लाइफ गोल तो उसकी तरफ की आपकी ड्यूटी आपको 100% निभानी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी पेंटिंग्स आज मौजूद हैं उसमें से सबसे खास पेंटिंग या आपकी कह सकते हैं आपकी कोई फेवरेट पेंटिंग यहाँ पर हो? फेवरेट तो मैं ऐसे अलग से नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन आपके पीछे है, जो पिन मैंने अपने साइज की बनाई है, वो मेरे साइज की इसके लिए है क्योंकि मैं अपने आप को उसमें देखती हूँ। और ये चीज़ मैंने मेरे लाइफ में पहली बार की है। इंस्टॉलेशन मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत अपील कर रहा था कि मैं इस तरह से बनाऊँ, तो उसके साथ मेरा खास जुड़ाव है। और कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला? अभी आज दूसरा दिन है इस एग्जीबिशन का, राइट? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। बड़ौदा के लोग वैसे भी कला रसिक है और बहुत सपोर्टिव है, तो जब भी हम लोग इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, हम बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं। शो चलेगा और आज का दिन और कल का पूरा दिन 11 से 7 बजे का टाइम है। सो मेरा शो का डेट था 16, 17 और 18, 3 दिन के लिए शो है 11 से 7 का। आप ज़रूर आइए। तो ये था अमिता गोस्वामी द्वारा आयोजित खूबसूरत पिन एंड पुल्ड एग्जीबिशन, जो सिर्फ एक आर्ट शो नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं एक विचार है, एक एहसास है जो हमें हमारी जीवन की गहराइयों को कला के माध्यम से समझने का मौका देती है। और ये साबित करती है कि कला सिर्फ दीवारों पर सजाने के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं को जगाने के लिए और समाज में कुछ बदलाव लाने का जरिया भी बन सकती है। और अगर आप भी कला
और भावना की इस अनूठी दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं तो इस एग्जीबिशन में जरूर आए और इसी तरह की कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM टीवी। गुजरात के वडोदरा के शिनोर तालुका पंचायत की सांदली 2 सीट पर भाजपा की विजय हुई है। वडोदरा के शिनोर तालुका में सांदली 2 सीट के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश पटेल ने कांग्रेस के कनुभाई पटेल को भारी मतों से हराया। सांदली 2 सीट पर हुए इस उपचुनाव में कुल 2216 वोट डाले गए थे, जिसमें से भाजपा के प्रकाश पटेल को 1649 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कनुभाई पटेल को केवल 544 वोट ही मिल पाए। नोटा में 23 वोट पड़े। आज रोज सिनोर तालुका सांदली मुकामी पेटा चूंटણીની રિઝલ્ટ આવતા ભાજપની જીત થઈ છે। તે જીતને અમે આવકારીએ છીએ। અમારા કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરીશું। તેમજ આ સીટ એક ભાજપ તરફી સીટ હતી, પણ પહેલેથી જ ભાજપ હતી, પણ અત્યારે એટલા બધા મતથી અમે જીત્યા છે, તેમાં અમારા ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ફૂલ જોશથી ઉત્સાહથી આ જીતને અમે આવકારીએ છીએ। સિનોર તાલુકામાં તાલુકા 10 સાદલી 2 તાલુકા પંચાયત સીટ માટે પેટા ચૂંટણી 16 તારીખે યોજવામાં આવેલ હતી, જેનું મતગણતરી આજરોજ તાલુકા સેવા સદન ખાતે રાખવામાં આવેલ હતું। જે મતગણતરી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ઉમેદવારો તથા એમના એજન્ટો રૂબરૂમાં હાથ ધરવામાં આવેલ છે। જે પૈકી કનુભાઈ મોહનભાઈ પટેલને 544 મત મળ્યા હતા, પ્રકાશભાઈ કનુભાઈને 1649 મત મળ્યા હતા, નોટાને 23 મત મળ્યા હતા। આમ કુલ 2216 મત પડેલ છે, જે પૈકી પ્રકાશભાઈ કનુભાઈ પટેલને સૌથી વધુ મત મળેલ છે, જે આજરોજ મતગણતરી પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ છે।